evening. My name is Firoz and I am here to discuss about India. As we all know, India got freedom in the year 1947. Almost the travel of 65 years. In this meantime, its economy been faced by many challenges. It's overcome from undeveloped to underdeveloped, and now it's been almost developed. A very good example of it, as all we know, the recent organization of the Commonwealth Game is a very huge chain of metropolitan cities in India. Good colleges, best connectivity of roads, rail, air shipments. As we just discussed, India has the third most chain of roads and the lakhs of kilometers of railway line with 1,000 fleet of aircraft, with the employment providing of 60% of the total population. Capital which overcome in last 10 years. Metro is the gift to the public of NCR and even one of the best asset to our country, which covers almost 80% of the area of the Delhi, which creates a very good connectivity for the people of Delhi. India has been already famous for its infrastructure. Hundreds of years ago, constructed buildings like Taj Mahal, Qutub Minar make over widely recognized. Infrastructure is being boosted up in last 30. Right now, we have seen a very good side of the coin. We have seen a metro line, we have seen a 5-star hotel, we have seen a very good well-cultured mall, we have seen a very good roads. And right now, presently, I am standing in the same country to the opposite side of the coin. I am standing in a very small slum in the Kaushambi area. It's the other side of the life. We can see it's a very small slum area with a plenty of people staying here. We can see the very small home. It will be very difficult for the people who are staying here to survive. We can come even inside. We can see it's a very plenty of space. We can see a very plenty of space, and these some of the utensils by which they can cook their food and make out their life. We can see the food, how the food is lying over there. You can see the water, the dirty water. The dirty water which is right here, it's totally yellow in color. The government is not providing the proper water to them. Now we are moving outside. We can see the material which are used. We can see the material in which we can see the material which is used for constructing their house. This is simply a raw material. At the time of rain, at the time of summers and winters, these people used to face a lot problem for them. Washroom side. We can see the washroom area. We can see here we can see a common tap. Here we can see a common tap which is being provided by the municipal government for water. In this whole slum area, there are about 150 of people living in a very small slum area, and for all those 150 people, government has provided only one tap. We can see the bad condition of this. We can see the bad condition of the sewage over here. It's all the filling of the water, inviting the diseases to come upon the human beings. Here is the labs area. These people used to use these labs. Here's the labs area. Here's the labs area. The people which use for their toilets and other things. This is the only laboratories which the people has making it by their own efforts. Nothing has been provided by the government. The electricity you can see a certain wires over here. Certain wires over here by which they are getting the electricity. All these things competitively, completely make their life very miserable and effortless. They are just, the government has provided nothing even to them. There are plenty of students. We will talk one of them. इनके पास स्कूल बैग है, and we will ask him. कौन सी स्कूल में जाते हो आप? कौन सी क्लास में हो? पहली क्लास में. He is a student of a first standard. और क्या पढ़ाते हैं आप वहाँ पे? क्या पढ़ते हो वहाँ पे आप? सिटिंग अरेंजमेंट और आसन है। बैठने के लिए कुर्सी होती है वहाँ पे सारी? सारी कुछ चेयर वेयर होती है बैठने के लिए? पानी की सुविधा है वहाँ पे? और खाना वाना मिलता है आपको स्कूल में? कैसा खाना मिलता है? खाने वाने मिलता है? पानी और पानी मिलता है वहाँ पे? Here we can see खाना मिलता है? a student from a first standard. You can see the condition of his uniform. He is in first standard. He is being not properly provided for even for the midday meal. He is just only getting a coalition food. That's it. We can take some more students. कौन सी क्लास में हो? थर्ड में. कहाँ पढ़ते हो? इंडियन चाइल्ड हाई स्कूल. कहाँ पर? इंडियन चाइल्ड हाई स्कूल. इंडियन चाइल्ड हाई स्कूल. अच्छा, खाना वाना मिलता है आपको वहाँ पे? लंच लेके जाते हैं. पापा क्या करते हैं आपके? काम करते हैं. काहे का?
नहीं पता आपको? कितनी सैलरी मिलती है, कितनी तनख्वाह मिलती है पापा को आपके? मुझे नहीं पता नहीं। 200 रुपए पर डे। इट्स टोटली अनसेंसिटिव आंसर। वी कैन टॉक टू दिस मैन। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू क्या करते हैं आप? ऑटो। There's a guy who is driving a simply auto and he is properly living the miserable life in this slum area. यहाँ कौन से कहाँ रहते हैं आप? बगल में AC टॉयलेट है जो यहाँ रहता है। ठीक है। और कितनी तनख्वाह मिलती है आपको राम बाबू? कितने पैसे कमा लेते हो आप? 7-8 हज़ार रुपये। कितने बच्चे आपके? बच्चे आपके? You are unmarried? शादी हो गई आपकी? नहीं। यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट क्या करती है आपके लिए? सरकारी तरफ से कोई सेवा, कोई पानी का नल या कुछ भी नहीं करती? कुछ भी नहीं। आप यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे खुश हैं आप? नहीं, कोई आते नहीं। यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता। कोई तरह की कोई बीमार हो जाए तो आप बाहर हॉस्पिटल या कोई दवा या किस तरह का कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से? अपने आप ले जाते हो। कोई सपोर्ट नहीं, कोई किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं। पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई में कोई फ्री एजुकेशन या कुछ नहीं, सब अपने पढ़वाते हैं सब कुछ। Here we can see we have just spoken to Ram Babu. He have told everything about that. He is not getting any sort of help from any sort of government. He is handling it all over. A salary of 7,000 with a family of full. मैं संदीप कुमार। आपका नाम जी? कलावती जी। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपके यहाँ पे जो खाने की है, आप ये खाना कहाँ से अरेंज होता है? कि इधर सरकारी राशन के डिपो से लाते हो या आप अपना बाहर से प्राइवेट लाते हो? प्राइवेट लाते हैं, काम करते। सर आप प्राइवेट लाते हो? सरकारी आपके राशन डिपो का आपका राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना? कुछ भी नहीं बना। तो आप कितने बच्चों का खाना कैसे क्या करते हो आप? काम करके लेते हैं। काम क्या काम करते हो? लगता है आप ये जितना भी खाना बनाते हो सारा ऐसे बनाते हो? आपके पास सिलेंडर, गैस, चूल्हे कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है आपके पास। आप फिर ये जो मटेरियल है इसका जितना भी ईंधन है, ये ईंधन कहाँ से लाते हो आप? आप ये ईंधन कहाँ से लाते हो कलावती जी? बाजार से। बाजार से? ये आप ये सब मोल खरीद के लाते हो या क्या? हमारे घर लोग हैं कमाए, यहाँ पे सारा सब लेते हैं हम। सारा मोल लेते हो? ये आपने देखा कलावती जी का, ये सब कुछ अपना पैसे से खरीदते हैं। सरकार का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। भैया आपके नमस्कार, मेरा नाम अरुण है। तो आपके यहाँ पे शौचालय वगैरह है? तो जैसे शौचालय वगैरह कैसे, कहाँ जाते हो, क्या करते हो? नाली पे जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। और जैसे कि बिल्कुल भी यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी तुम्हें सुविधा नहीं दी गई है? जैसे जो बस होती हैं, शौचालय बस वगैरह सुविधा नहीं है। हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता है आपको। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है किसी तरह की? नहाने की, शौच वगैरह की किसी की भी कुछ भी नहीं है। और जैसे कि कभी कोई दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कोई बीमार हो जाता है कुछ, उसके लिए शौचालय के लिए उसका भी कोई यहाँ प्रबंध नहीं है किसी तरह का? ओके। या आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ बिल्कुल भी किसी तरह का शौचालय की प्रबंध व्यवस्था नहीं है, और यहाँ बच्चे इस कारण बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। कितने बच्चे आपके? हमारे यहाँ 3 बच्चे। स्कूल जाते हैं लोग? क्यों गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है आपको? फीस की वगैरह की कुछ सुविधा नहीं। कुछ की नहीं। अच्छा। और कुछ? तो आप मतलब सेटिस्फाई हैं गवर्नमेंट ने जो आपके लिए किया है? आप खुश हैं उसमें? क्या चाहती हैं आपकी, क्या करे आपके लिए गवर्नमेंट? मतलब आप क्या उम्मीदें रखती हैं आप सरकार से? तो आप चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ किया जाए, शिक्षा के लिए? तो यहाँ पैसे नहीं है तो क्या पहुँचाएंगे पढ़ाने के लिए? खर्चा नहीं है। हाँ, तो सरकार कुछ भी नहीं करती है आपके बच्चों नहीं, को? सरकार के पास आप गए नहीं, बोले नहीं। जब आपके पास आती है इलेक्शन का कुछ भी आता है तो क्या आप अपनी समस्या रखती हैं उनके सामने? कभी आई नहीं। कहीं यहाँ पे सरकार पहुँची नहीं है, ये दिल्ली के मतलब कि यहाँ तक अभी भी सरकार जो है, मतलब ये सारी चीज़ें सरकार को नहीं पता है कि क्या क्या हो रहा है? नहीं पता क्या? तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार की इन सब लोगों की मांगे क्या हैं, ये सरकार को कुछ भी नहीं पता है। आपको पीने का पानी मिलता है यहाँ पे? सप्लाई का आता था वो भी काट दिया।
तो आप पानी दूर से लेके आते हो? थोड़ा तेज बोल। कहाँ से लेके आते हो? वो सप्लाई से लाते थे, वो भी बंद हो गई। सप्लाई बंद हो गई तो आप क्या करते हो फिर? कितनी दूर जाना पड़ता है आपको पहले? अब तो अभी तो जो है आज बंद हो गई। कल का पानी रखा हुआ है तो ना वही नहाने में यूज करते हो, वही पीने में? तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई टैंकर वैंकर यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं होता? कोई सप्लाई नहीं है। तो आप कितने किलोमीटर, कितना पास में है क्या दूर जाना पड़ता है? अभी तो जाते अब कहीं नहीं है पानी, पीने के पानी कोई व्यवस्था नहीं है कोई ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इन्होंने क्या आपका पीने का पानी है क्या नहाने का? नहाने का पानी है। तो पीने का पानी का जो केन में भरते। अच्छा, तो यहाँ पे जो सारा पानी इकट्ठा हो रहा है आपका, जो नहाते हो ये पानी इकट्ठा हो रहा है, इससे मच्छर पैदा होते हैं, तो इससे डेंगू का खतरा आपको यहाँ पे किसी को डेंगू है?